Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. So, only 5 students have joined. Yes. Sir, your voice is coming very slow. अरे नहीं यार, ऐसा मत बोलो. नहीं सर, आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है. कट क्या थी? Is it clear now? Yes, sir. Now it is clear. Now it is clear. Hanji, so I was asking you all that have you all started doing work on your art integration projects? स्टार्ट कर दिया या नहीं अभी? No, sir. मैथ्स में आप लोगों को मालूम है क्या करना है? मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया था आपको सब Yes. कुछ. डू यू ऑल नो कि क्या करना है? नहीं सर. नहीं पता है? नो सर. What about the others? हाँ जी. Sir, how do you Pythagoras theorem in kite festival? बेटा you can first of all you can tell about kite festival. आपको पहला काम क्या करना है? You will, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, ठीक है? Okay, sir. First you explain about kite festival. What is the history of kite festival? What is the culture of kite festival? Why it is celebrated in Gujarat? गुजरात के रेस्पेक्ट में आपको बताना है. गुजरात का फेस्टिवल है काइट फेस्टिवल, आपको मालूम है? डू यू ऑल नो दिस और नॉट? Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. So on which day it is celebrated? First thing, why it is celebrated? What is the history? What is the culture? How it is celebrated? All these things you will tell about kite festival first of all. Now then you can relate the kite festival with the help of Pythagoras theorem. उससे relate कर सकते हैं आप kite festival को कैसे? Suppose a person is standing at point A and he is flying a kite. This is your kite at point B. The person is standing at point A and the kite is at point B. ठीक है? And the length of the string is 100 meter. स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 100 मीटर्स की है. स्ट्रिंग जानते हैं? स्ट्रिंग को हिंदी में क्या बुलाते हैं? काइट की स्ट्रिंग को. काइट की जो मांझा. हाँ मांझा. बहुत पतंग उड़ाई है नैतिक ने. सर उड़ानी नहीं आती सर, लेकिन पता है. पता है? अच्छा चलो अच्छी बात है. मेरी तरह हो मतलब. मैंने भी नहीं उड़ाई है काइट कभी, बट मुझे मालूम है मांझा बुलाते हैं. तो this is the manja. The length of the string is 100 meter and the vertical distance, sorry, horizontal distance of the person and the kite. Horizontal distance मतलब straight distance. अगर हम ground पर चलेंगे तो kite की जो distance आ रही है horizontal distance, that is 80 meter from the person. Okay, 80 meter है. You have to tell
The kite is flying at what height from the ground? ग्राउंड से कितनी हाइट पर काइट फ्लाई कर रही है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको? Yes, sir. Yes. Square plus AB square. Yes, sir. Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो मैंने यहाँ पर जो हाइट पे काइट फ्लाई कर रही है वो हाइट x मान ली। आपको जरूरी नहीं है आप ये एग्जांपल लेके, यू कैन टेक एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन साइड। अपना कोई एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो एग्जांपल मैंने लिया वो एग्जांपल आप भी लेंगे, ठीक है? So hypotenuse, what is the length of hypotenuse? 100 meters. 100 square. Sir, how we find that this side is hypotenuse and this side is base? बेटा जो साइड 90 के अपोजिट होती है, 90 डिग्री एंगल कौन सा है? एंगल C is 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, बता चुका हूं मैं ये पहले भी। Okay, sir. ओके, और ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगी। ओके, तो x square perpendicular is x and what is the base? It is 80 square। 100 square is 10,000। x square equals to, sorry, plus 6,400। 80 का स्क्वायर हो गया 6,400। Now 10,000 minus 6,400 equals to x square। So x square is equal to 3,600। x is equal to square root of 3,600। 3,600 का स्क्वायर रूट होता है 60 मीटर। कितनी आ गई? स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई। सॉरी, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं, हाइट। द हाइट एट विच, ग्राउंड से काइट की हाइट अगर हम देखेंगे कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है? हाइट 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। Got it, all of you? Okay, Yes, sir. तो in this way you can, एक तो काम क्या हो गया? 3 काम करने हैं आपको। फर्स्ट थिंग क्या हो गई आपकी? You relate the kite festival. First, to tell about kite festival. Second, relate the kite festival with Pythagoras theorem. थर्ड थिंग आप क्या करेंगे? काइट की प्रॉपर्टीज बताएंगे। काइट की प्रॉपर्टीज आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। काइट की शेप क्या होती है? काइट इज अ टाइप ऑफ quadrilateral, it has 4 sides। उसकी 2 adjacent sides equal होती हैं। There are 2 pairs of adjacent sides which are equal। In a kite, the diagonals are perpendicular। One of the diagonals of a kite bisect the other diagonal। What else? There is one pair of opposite angles in a kite which are equal to each other। बहुत सारी properties होती हैं kite की। So you can search these properties from the internet। इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए properties of a kite, आपको मिल जाएंगी बहुत इजीली। एंड देन यू कैन टेल अबाउट द प्रॉपर्टीज। उनको आप एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे एक्सप्लेन करना है उसके लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, कि आपको अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ काइट को कैसे आप, Yes, sir. यू कैन वॉच द वीडियोस ऑन यूट्यूब। और अच्छा होगा कि अगर आप you are doing it with the help of PowerPoint presentation। PowerPoint presentation बना लीजिए, उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर कुछ, वो तो आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, आजकल बच्चे इतने एडवांस हैं। देखिए इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। जब मैंने पूरी पंचायत समझा दी कि क्या होता है काइट फेस्टिवल, कैसे होता है ये वो। अरे सर, अभी मैं मीटिंग में ही था पर रिस्टार्ट करना पड़ा सर पीसी।
मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे वो आप रिलेट कर सकते हैं काइट फेस्टिवल को। मैथ्स में आपको क्या करना है प्रोजेक्ट में, वो सब मैं बता चुका हूँ। और इतने सारे अब लेट ज्वाइन कर रहे हैं इतने सारे बच्चे। So those who have missed it, they can join the class again. मतलब they can watch the recorded video and watch it Yes, sir. again. Okay, जो आपने मिस कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। यू कैन वॉच द वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। इंटरनेट से पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं काइट्स की और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काइट की शेप कैसी होती है, काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बट देखने में अच्छा लगना चाहिए। वीडियो शुड बी अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गंदी सी कॉपी पे काइट बना दी और उस पे हाथ से समझा दिया, ये देखिए ये काइट होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो आप क्या करिए, एक अच्छी सी कलर्ड शीट ले लीजिए पेपर की, उसको काइट की शेप में कट करिए, उसमें ड्रॉ करके एक्सप्लेन करिए अच्छे से तरीके से। कलरफुल शीट्स आती हैं पेपर की, उसमें काइट की शेप में कट करके उसको एक्सप्लेन करिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप कंप्यूटर की हेल्प ले लीजिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लीजिए, इंटरनेट से पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए। तो जो भी आपको तरीका पसंद आए उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब हम अपने टॉपिक पर आ जाएं जो हम पढ़ाई कर रहे थे। Yes, sir. Sir, I have a doubt in the chapter Properties of Triangle, exercise 15C, वेरी गुड। question number 6. बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपको डाउट है। इतना अच्छा लगता है मुझे बच्चे डाउट पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी फीलिंग आती है। मैं क्या करूं? बेटा पेज नंबर बताओ। Sir, page number 189. 189. 189। क्वेश्चन नंबर 6. 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 4 इक्वेशंस बनानी है और ऐड कर देना है। ABCD is a quadrilateral. Prove that AB plus BC plus CD plus DL is greater than AC plus BD. बहुत अच्छे। चलिए देखें। So there is a quadrilateral in this question number 6 पेज नंबर। डाउट पूछा है मनीष ने पूछा है बेटा। पनीर बेटा Yes, sir. पेज नंबर 189। मटर पनीर लोड़ी आ रही है, क्या खिलाओगी लोड़ी पर? पार्टी वार्टी दे दो। Yes, sir. आ जाए घर, क्या आपके लोड़ी पे पार्टी पे आ जाए घर पे। आ जाओ। क्या बनता है लोड़ी पे स्पेशल आपके घर पे? सर पिछले साल तो नहीं बनाई थी हमने लोहड़ी, पिछले इस साल नहीं साल बनाई? पता नहीं। चल पता नहीं। नहीं, पिछले साल नहीं बनाई थी। अच्छा, तो लोहड़ी पे खाने में क्या बनता है आपको याद है कुछ कि कुछ स्पेशल खाना बनता है या ऐसे नॉर्मल सा कुछ बनता है? राजमा बनते हैं? यस सर। सर शाम को सारे घर वाले इकट्ठे होके ऐसी बातें बातें गेम वेम खेलते हैं। सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। यस सर। वो लोहड़ी की वो
मूंगफली एंड क्या कहते हैं उसको, यस सर, पॉपकॉर्न खाते हैं, यस सर। गदगद मूंगफली पॉपकॉर्न एंड वो खाने में क्या राजमा बनता है, राजमा बनेगा, राजमा मुझे बहुत यस पसंद सर, है, राजमा बनेगा बन तो जाते हैं, ठीक है, छोले बन जाते हैं, राजमा बन जाते हैं। राजमा मुझे अच्छा लगता है वो। चलो बेटा मजाक कर रहा हूँ, देखिए नहीं आऊंगा मैं आपके घर, घबराओ नहीं। देखिए इन सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, यू विल टेक 4 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इसमें दो साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट the sum of two sides, any two sides of a triangle is greater than the third side। तो अगर मैं साइड AB और साइड BC को ऐड करूंगा ट्राइंगल ABC में, तो AB और BC का सम जो है वो थर्ड साइड AC से बड़ा होगा। क्लियर? फर्स्ट इनइक्वालिटी इसको मार्क कर लेंगे। यस सर, फिर इन ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ले लेंगे, ट्राइंगल BCD ले लीजिए, मान लीजिए ट्राइंगल BCD, इसमें BC प्लस CD इन दोनों का सम BD से बड़ा होगा। सेकंड, थर्ड आ गई इन ट्राइंगल एडीसी, इसमें CD प्लस AD इन दोनों का सम आपका AC से बड़ा हो जाएगा, थर्ड इन इक्वेशन। एंड फिर लास्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में AB प्लस AD दो साइड्स का सम फिर से डायगोनल BD से बड़ा हो जाएगा, फोर्थ। तो मैंने देखिए ध्यान से कौन कौन से ट्राइंगल्स को लिया है, ट्राइंगल्स मैंने उसके अकॉर्डिंग लिए सच दैट जो मेरी डायगोनल्स हैं सारे केसेस में, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर डायगोनल्स मैंने राइट हैंड साइड में लिखी हैं, ठीक है। यस ट्राइंगल सर, एबीसी में AB एंड BC का सम AC से बड़ा है, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। सिमिलरली ट्राइंगल BCD को देखिए, BCD में डायगोनल कौन सी है ट्राइंगल BCD में, कौन सी डायगोनल है, BD इज द डायगोनल। तो डायगोनल यस को मैं सर, हर केस में राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, AC BD फिर से AC फिर BD। तो ट्राइंगल BCD में BC plus CD is greater than BD and similarly डी, the other two triangles also, triangle ADC में AC is the diagonal, so AD plus CD is greater than AC। ये एसी। आ गया, ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वाला। तो ये फोर्थ बना लिए, चारों इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, हेडिंग इन इक्वेशंस नंबर 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे। 1 plus 2 plus 3 plus 4, adding all the four in equations, we get AB plus चारों इन equations का LHS ऐड हो जाएगा, AB plus यस, BC एलबीसी plus BC plus CD, प्लस बीसी प्लस सीडी हाँ जी, plus CD plus AD, प्लस सीडी प्लस एडी plus लास्ट वाली प्लस AB plus एबी AD। प्लस एडी। यस, वेरी गुड। मटर पनीर बहुत घर पे होशियार हो गई हैं, घर पे मटर पनीर खा खा के। AC प्लस BD पीडी प्लस AC प्लस BD, एसी प्लस पीडी। चारों इन इक्वेशंस का हमने RHS भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, AB कितनी बार लिखा है, यहाँ पर AB 2 बार लिखा है, तो 2AB हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जगह कम हो गई नीचे। 2AB 2BC प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2AD, AD का ये और ये प्लस 2AD ग्रेटर देन RHS में देखिए AC प्लस AC 2AC प्लस 2BD, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारी टर्म्स में 2 2 2 सब जगह लिखा हुआ है,
तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, चारों साइड्स हो गई। ग्रेटर देन RHS में भी 2 कॉमन ले लेंगे, AC प्लस BD। 2 से 2 दोनों साइड से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? 2 यहाँ से वहां डिवाइड में चला जाएगा, कट जाएगा। यस सर। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन AC प्लस BD। आंसर आ गया। बताइए कोई डाउट है? यस सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। थैंक यू सर। आगे बढ़ जाए फिर अब हम। और कोई डाउट है किसी को? Anyone having any doubt? No one, no doubt. Okay, so have we started doing exercise 8B or not? No, sir. अच्छा, 8A कर रहे हैं हम अभी। Yes, sir. Which question we have done? Sir, we have done till question number 20. We have done till question number 20. अरे वाह, बहुत अच्छे, काफी तरक्की कर ली है हमने। We have not done question number 21. Sir. Okay. So 21. I think 23rd कर लिया है हमने, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Have we done question number Yes, 20? sir. हमने 23 कर लिया. अच्छा, 21, 22 नहीं करे हैं, लेकिन 23 कर लिया है। 21 करते हैं, चलिए। मनीष बेटा, भैया ठीक है तुम्हारे? यस सर अभी अभी गए हैं, छत पे थे बाहर, अभी अभी गए हैं नीचे। अच्छा, सुन रहे थे क्या मेरी बात? यस सर। वो तुम बोले क्या नहीं बोले? नहीं सर कुछ नहीं, उन्होंने वो मेरे को मैथ्स करा रहे थे कल शाम को, तो हाँ, उन्हें भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा था सर से पूछ लेना। अच्छा बेटा। तो बेटा ये बताओ कि भैया ने क्या लिया है? 11th में आ गए होंगे भैया। यस सर। PCM लिया, कॉमर्स लिया? सर कॉमर्स विद PHE लिया। अच्छा, कॉमर्स में PhD। डॉक्टर साहब तो नहीं बनेंगे भैया? नहीं। तो नहीं ली है? नहीं। अच्छा, कॉमर्स विद PhD, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज नंबर 8B। भैया भूल गए मुझे यार, बात ही नहीं करते हैं भैया, स्कूल में मिलते Sir, हैं, 8A. मिलते ही नहीं कभी स्कूल में। सर स्कूल ही नहीं जाते हैं वो अभी। नहीं, आजकल तो नहीं जा रहे, पहले जाते थे ना, जब 10th में जब थे। तो पुराने छोटे मोटे टीचर्स को बच्चे भूल जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं। देखिए भाई, एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 21 we have to do. So in question 21, if 4x plus 5, sorry 21, x ratio y, क्या given है? X ratio y is equal to 3 ratio 4. We have to find the ratio 3x plus 4y ratio 5x plus 6y, ये हमको फाइंड करना है। ओके, सो first of all you change this in a fraction
इसका यूज करेंगे हम वो वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड करना है, कैसे यूज करेंगे। x upon y is equal to 3 upon 4. So from this, if you find the value of x, you will get 3y upon 4. Okay, x equal to 3y upon 4. Y I have taken to RHS. It will go in the numerator. So x equals to 3y upon 4. Now we will use this relation to find the ratio 3x plus 4y. क्या निकालना है? 3x plus 4y ratio 5x plus 6y, ये हमको फाइंड करना है। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो here Sir, how x is equal to 3y upon 4? वही मैंने बताया अभी आपको, y को यहाँ से हम डिनोमिनेटर में लिखा है, हम इसको RHS में ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आया? सर नहीं। अरे बेटा, अरे इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है तुमने, लीनियर इक्वेशंस तो उसमें सीखा था नहीं सीखा था? कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाएगी RHS में, अगर डिवाइड में तो उसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ये नहीं सीखा है तुमने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा है, लेकिन सर ये सर डन। सॉरी, आवाज कट रही है। सर डन। अरे बेटा आपकी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर माइन। नहीं नैतिक। सर द आंसर इज 25 रेशियो 39। हाँ आंसर सही है नैतिक। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो यहाँ से हम y को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 3y अपॉन 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। x की वैल्यू हमने y की टर्म्स में निकाल ली और हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे। x इक्वल टू 3y अपॉन 4, वी विल यूज दिस रिलेशन हियर। कैसे करेंगे देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, जो वैल्यू अभी हमने निकाली है x की वो यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 into 3y अपॉन 4, x की जगह क्या लिख दिया मैंने? 3y अपॉन 4 लिख दिया, ठीक है, प्लस 4y। ये तो फर्स्ट वाला हो गया आपका। सेकंड टर्म 5x प्लस 6y, 5x, x की जगह फिर से क्या लिखेंगे? 3y अपॉन 4, अगेन 3y अपॉन 4 प्लस 6y। तो दो जगह यहाँ पर x आ रहा था, दोनों जगह मैंने x की जगह 3y अपॉन 4 लिख दिया, बस और कुछ नहीं करा। क्या करा? x की जगह 3y अपॉन 4 लगा दिया दोनों जगह, ठीक है। नाउ when you multiply 3 and 3y, 3 multiplied by 3y is 9y, 9y upon 4 ratio, sorry, plus 4y ratio 5 into 3 15y upon 4 plus 6y। ऐड करना आता है सबको? एलसीएम लेकर के ऐड करना आता है ना? व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर? 1। Here also the denominator is 1. So when you add these two terms, क्या मिलेगा आपको? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। You will get 25y upon 4 ratio, ये ब्रैकेट चाहे तो आप हटा दीजिए बिकॉज ऐड कर दिया है मैंने। So you get 25y upon 4 ratio after adding these two. Similarly here also you will add 15y upon 4 plus 6y. So here you will get 24 plus 15, 39. 39y upon 4. ये आ गया LHS में. Now you convert them in fraction. लास्ट में दोबारा से रेशियो में चेंज कर लेंगे. 25y upon 4 multiplied by 4 upon 39y. डिवाइड में चेंज करके इसको पहले डिवाइड में चेंज कर लेंगे.
उसके बाद रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस, 4 से 4 कट जाएगा देखिए, एंड y से y कट गया, कितना बचा 25/39। 39 25/39 का मतलब क्या हो गया, रेशियो में निकालना है आंसर, तो 25 25 रेशियो 39 39 is the answer. 39 Okay. 25/39. 22 Understood? yes sir Okay. Have you all noted sir this in 22 your copies? Sorry? सर 22 वाले में सिर्फ नंबर चेंज है बाकी पूरा सेम है हाँ जी बिल्कुल, exactly same question it is. You can try the 22nd one in homework. Homework में try करिएगा, okay? ओके सर 23rd we have already done. We will now start with question number 24. I hope you all have written this in your copies. Sir, done whole exercise. Now let's see. Sir, only 22 is left. 22 is left. 24 कर चुके हैं क्या? Yes, sir. नहीं बेटा ऐसी बात मत करो, 24 नहीं किया है शायद। नहीं नहीं बेटा 24 we have to do. See how to do question number 24. Sorry, sir, I have not done 24. I have only done 23. Or 24 very simple sir, question. not done 24. You have to I compare have only done. द रेशियोज और आपको बताना है कौन सा रेशियो बड़ा है। तो फर्स्ट वन इज 5 Okay, sir. रेशियो 6 और you have to find the greater ratio 7/9. Between these two you have to find which one is greater. So first you convert the two ratios in fractions, 5/6 and 7/9. So look at the denominator 6 and 9. LCM of 6 and 9 is equal to 18. Yes, sir. So 5/6 multiplied by 3/3, denominator will become 18. Denominator को 18 बना देंगे because the LCM is 18. Numerator में आ गया 15. Here 7/9 multiplied by 2/2. 9 को 2 से multiply करके 18 आ जाएगा. That is why we are multiplying it by 2/2. 7 into 2 is 14. Now in the two fractions you can see that the denominators are same. दोनों जगह denominator same दिख रहा है आपको. So just compare the numerator, you will get the answer. So first one is greater, ये वाला बड़ा है देखिए 15/18. That means 5/6 is greater than 7/9. Is it clear, all of you? yes sir Yes, sir. Similarly, do the second part. The third So part. this one, yes, sir. So Third वाला these questions are easy. हाँ. Do the third part. वो गलत नहीं है जो आप लोग ने पढ़ा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत नहीं।
है